Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. We Sir, are good fine. morning, sir. We are fine, sir. What about you? I'm also fine. In the chapter number 9, today we have to start a comprehension junction. So let us open the book first. Yes, sir. Yes, sir. This is the last section of this chapter, na? Or anything else is remaining? No, sir. Sir, it is the No, last. sir. After completing the grammar, after completing the comprehension junction, after completing this section, we would be moving on the next chapter. This is the last section of this chapter. Okay. So, in the comprehension junction, first of all, we have to read a passage. Then we have to give the answer of the questions that is based on this passage. So let us read the passage once again. Can you all try one by one that to elaborate, to explain the paragraph, or should I move ahead? मैं ही जल्दी कर दूं. Let me see that what is the length of this comprehension junction. It's too long. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही कोशिश करता हूँ. One by one also you all can try. Yes, Saurabh Kanoja, start. Sir, Minnie the hippo and Greeny the frog and Stocky the bird are lazy in the sun. There is a heavy wind blowing. Hello, where are you blowing to? Asked Minnie. Visit my friends, the Atlantic You Ocean. are reading the paragraph. You are not reading the. I'm not asking to read this one. I'm asking to explain the paragraph one by one. If you can explain, then let us know. Anupriya, please explain the paragraph after reading that. Explain in your own language. हिंदी में भी आप बता सकती हैं. Yes, sir. Minnie the hippo, Greeny the frog and Stocky the bird are lazing in the sun. मिनी जो हिप्पो था, ग्रीनी जो फ्रॉग था और स्टॉकी जो बर्ड था, वे सभी लेटे हुए थे सूरज की रोशनी में. बहुत बढ़िया. There is very heavy wind blowing. तभी वहाँ पे बहुत तेज हवा बहने लगी. Hello, where are you blowing to? asked Minnie. तभी मिनी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? Visiting my friend the Atlantic Ocean. मैं अपनी दोस्त के घर the Atlantic Ocean घूमने जा रहा हूँ. Come, he will be pleased to see you. चलो, आपको देख के बहुत खुश होगा. Okay, very good. Anupriya, stop. Tanishka, now your turn. You have to start from here. सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या अनुप्रिया ने समझाया? A high gust of air lifts the three friends. Soon they are flying over water. All they can see for miles is blue-green water. Sir, a mild gust air lifts. बेटा माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग. अ माइटी गस्ट ऑफ एयर, ये गस्ट एक तरीके से झोंका, हवा का झोंका है. अमन वर्मा, आई विल कम, डोंट वरी. लेट जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको भी थोड़ा सा हेल्प करने दो. अ माइटी गस्ट ऑफ एयर, एक शक्तिशाली हवा का झोंका क्या करता है? गस्ट ऑफ एयर यानी हवा का झोंका, माइटी यानी शक्तिशाली, एक शक्तिशाली हवा का झोंका लिफ्ट्स द थ्री फ्रेंड्स, इन तीनों फ्रेंड्स को. कौन से तीनों फ्रेंड्स को? मिनी, ग्रीनी एंड स्टॉकी, लेटे हुए थे, उन तीनों को उठा लेता है यानी लिफ्ट कर लेता है. एंड सून दे आर फ्लाइंग ओवर वाटर, और जल्दी ही वो लोग एक पानी के ऊपर उड़ रहे होते हैं. ऑल दे कैन सी फॉर माइल्स इज ब्लू ग्रीन वाटर. वो तीनों क्या देख रहे होते हैं उस समय कि बहुत दूर दूर तक केवल ब्लू ग्रीन वाटर ही दिखाई पड़ रहा है उनको. नेक्स्ट एक बार फिर से कोशिश करिए तनिष्का, यहाँ से. नाइस टू सी यू. चलिए, तनिष्का की आवाज भी प्रॉपर आ रही है. बेटा तनिष्का, जस्ट वेट. अमन वर्मा, नाउ यू प्लीज स्टार्ट. सब मुझे ये तुम्हें देखकर अच्छा लगा. जो समुद्र की लहरें हैं और
जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। आई हैव बाइक बेटा स्टॉप। अलोंग अमन माई वर्मा, अमन फ्रेंड्स। वर्मा, ये नाइस टू, आपको ये पता है कोटेशन मार्क में जो जो चीजें लिखी जाती है वो किसी का स्टेटमेंट होता है। नाइस टू सी यू, ये देख करके अच्छा लगा, ये किसी ने बोला नहीं, ये किसने बोला? ये जो वाटर था, जो सी था, ओशियन था, उसने Yes, बोला। कैसे बोला? बाय yes, राइजिंग इन ह्यूज वेव्स, बड़ी सी लहरें निकल, मतलब बड़ी सी लहरें उठते हुए, वो कहीं ना कहीं उसने, जो ओशियन ने बोला उन तीनों फ्रेंड्स को, क्या बोला? नाइस टू सी यू, आपको देख के अच्छा लगा। इस ओशियंस yes, को, इस लहरों को देख करके नहीं अच्छा लगा, लहरों ने ही इस तरीके से व्यक्त किया, yes, प्रतिक्रिया की, इंडिकेट किया, मतलब एक yes, बड़े से वेव्स समुद्र में उठा के, समुद्र ने ही अपने ही समुद्र के अंदर एक ह्यूज वेव्स मतलब उठा करके क्या किया उन्होंने? उन तीनों फ्रेंड्स को ये रिप्लाई किया। क्या कहा? नाइस टू सी यू। उसके बाद पढ़िए। I have brought along my friends see the wine. वाइन ने कहा कि मैं अपने दोस्तों को खरीद कर लेके जा रहा हूँ। बेटा वन मोर थिंग, आप लोग, कई सारे बच्चे इसको वाइन बोलते हैं, कई सारे बच्चे इसको वाइन, इसका एक्चुअल जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन वो क्या है? वाइंड है या विंड है? Wind. वाइंड कहना छोड़िए, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाइंड इज द विंड। विंड मीन्स हवा, मतलब चलती हुई हवा, मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो सेज द विंड, विंड क्या बोला? आई हैव ब्रॉट अलोंग माय फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स को अपने साथ लेके आया हूँ। मीनिंग, ठीक है, आगे अनिल मौर्य आप शुरू करें। अमन वर्मा जस्ट सर, मिनी, ग्रीनी और साइस्टाकी सर अटलांटिक ओशियन में मिलते हैं। सर द विंड ब्रेव देम इन giant air bubbles and drop them in the ocean. Sir, the wind brave. शान्विका एक बार आप कोशिश करें। शान्विका, मिनी, ग्रीनी एंड स्टॉकी मीट द अटलांटिक ओशियन। ये मिनी, ग्रीनी, Yes, sir. स्टॉकी जो है वो अटलांटिक ओशियन से मिलते हैं। द विंड Sir, mini, greeny, and slaky Antarctic Ocean. The wraps them in giant air bubbles and drop them in the ocean. मिनी, ग्रीनी और स्लैकी वो अंटार्कटिक ओशन से मिलती हैं, उन्हें विंड रैप्स करके उड़ा जाती है। then in giant and air bubble, एयर के एक बड़े से बबल में, एक बड़े से बबल and drop them ocean, और उन्हें ओशन तक ड्रॉप कर देती है। The wind wraps them in, मिनी, ग्रीनी एंड स्टॉकी मीट द अटलांटिक ओशन। जो मिनी, ग्रीनी, स्टॉकी थे वो अटलांटिक ओशन से मिलते हैं। द विंड रैप्स देम इन जायंट एयर, एक बहुत ही विशाल, जायंट मींस विशाल, बड़ा, आपको बताया गया था, एक बहुत सी बड़े एयर की बबल में, हवा वाले बबल में एक तरीके से उनको रैप कर देते हैं। ड्रॉप्स देम इन द ओशन, और उनको कहां पे मतलब भेज देते हैं? ड्रॉप्स यानी छोड़ देना, गिरा देना, इन द ओशियन। उसके बाद क्या होता है शान्विका? ठीक है, शान्विका इज नॉट कनेक्टेड। Yes, sir. Yes, Shanuka, you can continue. I'll just be back in the evening. Show them your wonders. So saying the ocean, thus the wind. So मैं वापस आऊंगा इवनिंग तक। Show your wonder. उन्हें अपना मैजिक, अपना जो वंडर है, अपना जो अपने चमत्कार इतने है, जादुओं को आश्चर्य कर देने वाली जो बातें हैं, बहुत सही। हाँ, so saying the ocean thirst, तो ओशन कहती है thirst the wind slow away, तो विंड दूर चली गई। बट हाँ ठीक है, चलो मैं भी कोशिश करता हूँ समझाने की। ओके, I will be back in the evening.
क्या होता है उन तीनों को कहीं ना कहीं विंड, जब वो ओशियन में ड्रॉप कर देता है विंड, तो क्या होता है, विंडी कहता है आई विल बी बैक इन द इवनिंग, मैं शाम को वापस आऊंगा। शो देम योर वंडर्स, आप अपने वंडर्स को उनको दिखाइए, शो मतलब दिखाना, शो देम, इनको आप अपने वंडर्स दिखाइए, अपने आश्चर्य दिखाइए, अपने चमत्कार को दिखाइए। सो सेइंग द ओशियन दस बी विंड, मतलब ये कहते हुए ओशियन से, किसने, ये कौन बोल रहा है, विंड बोल रहा है, विंड ये ओशियन से कहते हुए सुशेष अवे, एक तरीके से झपट्टा मार के दूर चला गया, झपट्टा मार के दूर चला गया। मतलब ये ओशियन से ये बात जो विंड है वो कहता है, आई विल बी बैक इन द इवनिंग, शो देम योर वंडर्स, मैं शाम को दोबारा वापस आऊंगा, तब तक आप इनको अपने वंडर्स दिखाइए, यू कैन शो योर वंडर्स। यू सीम ओह बिग गप्स ग्रिनिंग, आपने देखा, अब थोड़ा सा वहां पे एक इंप्रेशन है, जो वो लोग वहां पे जिस तरीके से आश्चर्य मतलब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, सम ऑफ द, so you have to read from here now. Who is next, who will try? Next Dibya. Yes, Dibya is not there. Satyaprakash Maurya, can you try? बेटा कॉम्प्रिहेंशन इसी से क्लियर होगा। हाँ बताइए, पढ़िए, आप यहीं से पढ़िए। Well, I am more than 71 million square kilometer and I am the second largest ocean in the world. बताइए इसका क्या हुआ, इसका मतलब। वेल, आई एम मोर देन 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मैं जो हूं वो 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हूं। एंड आई एम द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, और जो मैं हूं वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, दूसरा लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबा कह सकते हैं, सबसे लंबा ओशियन हूं इन द वर्ल्ड। एनी लैंड एनीवेयर, स्टॉकी आस्क होपफुली, क्या कहता है स्टॉकी, क्या पूछता है, एनी लैंड एनीवेयर, क्या कहीं पे कोई जमीन है, कहीं पे भी, आशा पूर्वक स्टॉकी ने पूछा। क्या फिर क्या आंसर, क्या रिप्लाई मिला, विकास वर्मा आप पढ़िए। विकास वर्मा शायद एक्टिव ही नहीं। Yes, North and South America, on one side, and Europe and Africa on the other side. हाँ, न उत्तर और दक्षिण अमेरिका में साइड है, और यूरोप और अफ्रीका में अदर दूसरा साइड है। यस, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वन साइड, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वो मेरे एक साइड में है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द अदर साइड, एंड जो दूसरी साइड है उस साइड कौन है, यूरोप एंड अफ्रीका। माई नॉर्थ एंड साउथ आर कोल्ड, जो मेरा नॉर्थ एंड साउथ आर कोल्ड, जो मेरा नॉर्थ और साउथ है वो क्या है, कोल्ड है और आइसी है, बर्फीली जगह है, ठंडी हवा, ठंडे वाले क्षेत्र हैं। बट आई एम मोर देन 4000 किलोमीटर वाइड, मैं 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हूँ। एट ए सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे मैं क्या हूँ, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हूँ, वाइड हूँ, यानी मेरा जो, मैं सब मिला के जो मेरा एरिया है वो फैला हुआ है। सेज द अटलांटिक ने बोला, स्प्रेडिंग इट्स वेव्स प्राउडली, जो अपने वेव्स यानी लहरों को प्राउडली, मतलब बहुत ही एक तरीके से घमंड तो नहीं कह सकते, अभिमान से भरा हुआ, यानी प्राउडली वो अपने वेव्स को स्प्रेड करते हुए, बहाते हुए, फैलाते हुए ये बातें कही। फिर क्या होता है, फ्रॉम हियर हु कैन स्टडी, हु कैन रीड, अतुल चौहान कैन यू ट्राई, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आई होप यू कैन ट्राई। सावित्री पाल, आवाज नहीं आ रही है सावित्री पाल, आपकी स्लो आ रही है।
Sir, a giant had reached through the water. What a large fish! gasped Sticky. जो giant है वो वाटर के अंदर चला गया. क्या है ये जाइंट मीन्स क्या होता है, जरा बताइए. एक जाइंट ने जो आप बोल रही है जाइंट मीन्स होता क्या है? फिर बड़ा. हाँ, तो एक बड़े से हेड ने क्या किया, ब्रेक किया थ्रू द वाटर. क्या मतलब उसी बीच में अचानक एक ब्रेक, एक अवरोध उत्पन्न हुआ. व्हाट ए लार्ज फिश गैप स्टॉकी. A giant head breaks through the water. एक बड़े से हेड ने एक तरीके से एक अवरोध व्यक्त किया थ्रू द वाटर. उसी एक बड़े से का जो एक बड़ा सा सर होता है, एक सिर होता है, हेड होता है, वो तुरंत ही वहां पे सामने आता है उसी पानी में से. तभी जो स्टाकी है वो हाँफते हुए बोलता है व्हाट ए लार्ज फिश, मतलब कितना बड़ा फिश. तब उस जो फिश है वो आंसर करता है आई एम अ व्हेल, मैं व्हेल हूं. इट डिक्लेयर्स while curiously nudging the giant air bubble. इसकी मीनिंग कौन बताएगा? अनुप्रिया. व्हेल, यहां से पढ़िए. मैं whale हूँ, उसने घोषणा किया. While cruising nudging the giant air bubble, और जोर से बड़ा सा बबल छोड़ दिया. जो बड़ा सा बबल था उसको एक कोहनी मारते हुए, क्यूरियसली यानी एक तरीके से, मतलब दिस इज द वे ऑफ टेलिंग दैट कि वो अपने आप को घोषित किया कि आई एम अ व्हेल, और उस बबल को एक तरीके से कोहनी मारते हुए बताया कि आई एम अ व्हेल. अब उसके बाद क्या, वर्ड्स स्प्रेड्स अमंग द अदर ओशियन. यहां से कौन पढ़ेगा? सचिन चौहान. तनिष्का ने तो वीडियो ही बंद कर लिया. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. सचिन चौहान, निहारिका वर्मा. एक बार अच्छा आप पढ़ ही दीजिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए. निहारिका वर्मा स्टार्ट. आप एक बार पढ़िए बेटा, मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत हो, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी. स्टार्ट योर माइक. निहारिका, आई एम नॉट हैविंग द टाइम, ओनली 8 मिनट इज रिमेनिंग. सेकंड खत्म होता है. आपको जब पता है टाइम जब लिमिट है तो वाई वर वेस्टिंग द टाइम. जस्ट यू, अगर आप पढ़ सकती हैं तो बताएं, पढ़ो एक बार, कोशिश तो करो. मैं कह रहा हूं मैं बताऊंगा, और इस तरह समय वेस्ट करेंगे और बच्चों को तो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं. फिर सिर्फ अदर स्टूडेंट्स आर वेटिंग. अमन वर्मा, यस प्लीज. Yes, sir. वेल कहती है कि हम तीनों का नाम फैला हुआ है. मेरे 3 गेस्ट हैं, मतलब कि तीनों लोगों का नाम फैला हुआ. पहला है डॉल्फिन, जो कि सबका वेलकम बहुत ऊंचे जंप करके करती है, और वाइल लॉन्चिंग द बबल अराउंड, और चारों तरफ बबल निकालती है. मिनी एंड ग्रिंडी थिंक इट्स फन. मिनी और ग्रिंडी सोचते कि यह बहुत मजाकिया लगती है. बट स्टैकी फील सीसिक, पर स्टैकी को लगता है कि ये बीमार लगता है कि वो बीमार है. What speeds among the other ocean creatures that the Atlantic has 3 special guests. एक तरीके से वर्ड्स जो स्पीड करता है among the other ocean creature, जो ओशियन में और भी जो क्रिएचर्स, जो और भी जीव जंतु रहते थे, उनके बीच में एक तरीके से, मतलब ये वर्ड्स लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. लोगों को पता चल जाता है कि देयर इज 3 स्पेशल गेस्ट. यहाँ पे 3 स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं इन द अटलांटिक ओशियन. द डॉल्फिन्स जंप स्ट्रेट अप इन द एयर टू वेलकम देम व्हाइल बाउंसिंग द बबल्स अराउंड. तभी उसी बीच में क्या होता है, एक डॉल्फिन है वो जंप करता है स्ट्रेट अप इन द एयर, सीधा स्ट्रेट ऊपर. डॉल्फिन है वो सीधा ऊपर छलांग लगाता है इन द एयर. क्या करने के लिए? टू वेलकम देम इन व्हाइल बाउंसिंग द बबल्स अराउंड. जब उनके आसपास वो बाउंसिंग, जो बाउंस क्या होता है, वो तीनों जो फ्रेंड्स हैं, एक हवा के, क्या बोला गया था उनको, एक तरीके से विंड में ही रैप करके, बबल्स के विंड बबल्स में ही रैप करके, तब वो हवा के झोंके में. यस सर. तो जब वो हवा के झोंके में, तो जो डॉल्फिन के अगल बगल जब वो बाउंस, जब बबल्स जब बाउंस कर रहे होते हैं, उसके उनके आसपास जब बाउंस कर रहे होते हैं, तो डॉल्फिन क्या करता है,
टू वेलकम देम दे जंप स्ट्रेट अप इन द एयर, वो सीधा सीधा हवा में छलांग लगाते हैं। मिनी एंड ग्रीनी थिंक इट्स फन, मिनी और ग्रीनी सोचते हैं कि ये बहुत ही मजेदार है। बट स्टॉकी फील्स C6, जो स्टॉकी है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है दिखता है। नाउ नेक्स्ट अनुप्रिया, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। The wave guides the bubble deep under the water. जो लहरें बबल्स और अंदर चले गए। Looks say and excited Stocky as school of fish sweep past in perfect formation. Look, Stocky ने उत्साह से बोला, देखो वो देखो, एक फिश की झुंड, एक मछलियों का झुंड तैर रहा है परफेक्ट फॉर्मेशन में। ओके, वेरी गुड। स्टॉकी एक आपको फिलहाल बहुत अच्छी चीज है, आपको ध्यान देना है। लुक सेज एन एक्साइटेड स्टॉकी, जो बहुत ही उत्साहित, जो उत्साह से भरी हुई थी, बहुत ही उत्साह पूर्वक स्टॉकी ने क्या बोला? एज ए स्कूल्स ऑफ फिश स्वीप पास्ट इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ये बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन बना रही है। कौन? स्कूल्स ऑफ फिश। आपको पता है स्कूल्स ऑफ फिश यानी मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको कहीं ना कहीं स्कूल्स ऑफ ये तो उन्हें स्कूल्स ऑफ फिश बोलते हैं, उसे स्कूल्स ऑफ फिश बोलते हैं। बहुत अच्छे। अनुप्रिया नेक्स्ट, गो अहेड फ्रॉम हियर। स्टॉकी स्टिक हिज हेड एंड गॉबल अप अ फिश, स्टॉकी ने अपने हेड को नीचे किया और एक फिश को निकल गई। नीचे नहीं किया, As they किया। go low, स्टॉकी ने क्या किया? स्टॉकी स्टिक्स हिज हेड आउट, उस बबल के बाहर अपना सर निकाला एंड गॉबल्स अप अ फिश। गॉबल्स मींस क्या होता है? जुबान से ही निगलना। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। As they go lower, Minnie claps. What a beautiful garden you have. जैसे जैसे वे नीचे गए, मिनी ने ताली बजाई और बोली, कितना सुंदर गार्डन है तुम लोगों के पास। The Atlantic breaks into ripples and it rolled them towards the swaying flower. अटलांटिक ब्रेक हुआ और गोल गोल घूमकर उन्हें एक swirling फ्लावर के पास ले गया। क्या होता है? द अटलांटिक ब्रेक्स इनटू द रिपल्स, रिपल्स मींस होता है लहर, समुद्र वाली जो लहरें हैं उनको रिपल्स बोलते हैं। उन लहरों को तोड़ते हुए अटलांटिक क्या बोलता है? इट रोल्स देम टुवर्ड्स द स्वेइंग फ्लावर, जो फ्लावर्स थे उनके पास लेके गया। फिर क्या होता है? लाइक सी अनाउंस। ठीक है बेटा, अभी पूरा पेज बचा है, जल्दी से कोशिश करें। अनुप्रिया आप ही जल्दी से खत्म करें बेटा, यू आर मूविंग अहेड क्विकली। Other students who brightly colored fish dart between अनुप्रिया के अलावा who can try? चलिए अनुप्रिया प्लीज कंटिन्यू। Other students are listening. Okay. brightly colored fish dart between them. चमकीले रंग की मछलियां उनके बीच में आई। sharp edged red and white coral grow like tree studded with starfish. नुकीले और एजेड रेड और व्हाइट कलर में कोरल्स जो पेड़ की तरह दिखती ग्रो करती थी, studded with starfish के टकराई। Okay, stop. From deep holes, Aman Barma, now you have to continue, please. From deep holes, sea octopus, lobsters, crab and oysters emerge. बहुत गहरे गड्ढे में ऑक्टोपस और लॉबस्टर और क्रैब और ऑयस्टर थे। नहीं, एमर्ज मतलब उभरना, सामने आना। अब इमर्ज मतलब उभरना, तो उभरना नहीं बोलेंगे इसको। एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस वी शुड रीड द वर्ड। कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली आपने होल बोला तो होल मतलब गड्ढा आपने बोला यहाँ पे। तो फ्रॉम डीप होल्स, बहुत ही गहरे पानी में एक तरीके से। शाई ऑक्टोपसेस, जो शर्माए हुए ऑक्टोपसेस हैं, ये मतलब दीज आर द नेम ऑफ द क्रिएचर्स। लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, ये क्या होते हैं? ये सामने आते हैं, एमर्ज करते हैं, यानी तुम के सामने आते हैं। और क्या होता है फिर? द अटलांटिक टेक्स द विजिटर्स डीपर। जो अटलांटिक है वो जो विजिटर्स है उनको बहुत ही गहरा और भी डीप में लेके जाता है।
यू हैव माउंटेन्स एंड वैलीज। तभी जब और डीप में लेके जाता है तो क्या मिनी सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य के साथ सरप्राइज, मतलब मिनी विद सरप्राइज, बहुत सरप्राइज होती है और कहती है यू हैव माउंटेन्स एंड वैलीज, आप समुद्र के अंदर माउंटेन भी है, पर्वत भी है, घाटे भी हैं। तो दिस इज हाउ। बेटा योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज। जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको आप लोग घर पे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जो बचा हुआ है थोड़ा सा, ये 2-3 पैराग्राफ इसको पढ़ के, इसको कंप्लीट करा के आपके एक्सरसाइज को भी डिस्कस करूंगा। ओके? Yes, sir. So Yes, 9:38 is Yes, there. sir. So what you all Yes, can sir. do, you all can rejoin the session today again. Okay, so that we can complete it by today itself. आप सभी लोग दोबारा ज्वाइन करें because Yes. I'm having Yes, another sir. class from 10 o'clock. So we are having enough time to complete this one. So you all need to rejoin the session. और जो आप आज की रिकॉर्डिंग होगी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड, मतलब अपलोड होगी। जो अभी की रिकॉर्डिंग है पार्ट 1, इसके बाद वाली सेम टाइटल के नाम से पार्ट 2 आपका अपलोड हो जाएगा। ओके? Yes. Yes, sir. यस। जैसे ही सेशन क्लोज होता